Hello, good morning students. Welcome back to the fourth lecture of maths of class 10th. Now in this lecture, we will solve the exercise of 2.3. So exercise 2.3, in exercise 2.3, mainly we have to solve or we have to do the division. Means how we can divide the given polynomials from the second polynomials. Now let's see, the first question of this polynomial is given. Question number 1. We have to divide the polynomial px by gx. Okay, so here px first option is given. Px is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3, and gx is equal to given x square minus 2. Now in this we have to find out quotient as well as remainder. So how we will divide? Actually this is a simple division, but here we have to divide the given polynomials by here binomials. So binomials, trinomials and monomials we have already discussed in class 9. So here how we will divide? By this. So px is given x cube minus 3x square plus 5x minus 3. We have to divide by x square minus 2. So x square minus 2, it will be x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Now what to do first? We have to keep such a term so that this first term can be cancelled. So क्या करेंगे हम? x स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म x क्यूब आ जाए? So we will put x over here. So if you multiply here x square into x, so you will get x cube. So first we will multiply with this 2x square 2x, so we will get x cube, then minus 2x. Okay, so here it will be 2x. So there is no term of this 3x square, so we will put here 0x square, then plus minus, because we have to write the like term below like term. So here it is, there is no x square, so we will get after multiplication of this 2 and x, we will get 2x. So we will write this below 5x, so it will be 2x. Now we will cancel. Now how to cancel? First of all, the signs are changed. Here it is plus, so we will put here minus. Here it is plus, so no need, because it is 0, so there is no need to change. And again here it is minus, so it will be plus. Okay, so this will be cancelled. Now here we will get now first 3x square, so we will write 3x square, and this is plus plus, it will become plus, so it will be plus 7x. Okay, now what will you put over here? क्या हम रखेंगे यहाँ पर, क्या कोसेंट लेंगे, ताकि क्या चीज, कौन सी डिजिट लेंगे जिससे x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3x आ जाए, 3x स्क्वायर आ जाए. तो आपको याद दिलाऊं कि x स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर हमारा डिवाइजर में है. हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हम 3 से करेंगे, माइनस लाने के लिए माइनस रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर, मीन्स वी विल गेट माइनस 3x स्क्वायर. तो यहां पर हमारा हम रखेंगे क्या, माइनस 3, तो इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट टर्म वी नीड टू कैंसल इट एनीवे. सो वी विल गेट नाउ 3x स्क्वायर. नाउ माइनस माइनस इट विल बी प्लस, so 3 into 2 6. So we will get first this here down. Okay, and here we will write 0x. Here we will write minus 3.
तो -3 and -2 it will be plus 3 to 6. तो हम यहां इसके साइन को अब फिर चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो हम प्लस करेंगे, यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0x है, नीचे में ये प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे। ओके, अब ये कैंसल्ड हो जाएगा टर्म, पहला टर्म हमें मिल जाएगा 7x और बचेगा यहाँ क्या, माइनस माइनस इट विल बी -9। अब हमें 7x लाना है, सो टू ब्रिंग 7x हाउ वी विल गेट 7x लाने के लिए, तो इसमें कोई टर्म ही नहीं है, कोई भी अगर टर्म रखेंगे तो हमें आएगा कितना, यहां पर अगर 7 भी रखते हैं तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 7x स्क्वायर आएगा। सो हियर वी आर गेटिंग आवर कोसेंट is equal to x minus 3 and remainder is equal to 7x minus 9. Now there is one rule to check the division, either this division is right or wrong. You know that is already taught in the lower classes. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So you can find out by that method that it is correct or not. Now coming to the second options of this second question we are going to do. Let's see the second question. So your remainder is this is remainder and this is quotient. Okay, now option number 2 in the same. Option 2 is given, that is x4 minus x4 minus 3x square plus 4x plus 5. This is px and gx is given x square plus 1 minus x. So in such questions, see here it is x4. So after x4 your power should be in decreasing order, means x4 then x cube then x square then x then constant term. In similar way we can rearrange this, means first x square then x. So we can write here x square minus x and plus 1. So you have to divide by this term. Okay, we have just arranged it. In similar way we can also arrange it like this, x4 plus हम क्या लिख देंगे, x क्यूब, तो x क्यूब का तो कोई टर्म नहीं है तो इसलिए हम 0x क्यूब लगा देंगे ताकि हमें लिखने में कन्वीनियंट हो, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख सकें। देन minus 3x square plus 4x plus 5. Now we will divide it. So gx is x square minus x plus 1. We will divide by x4 plus 0x cube minus 3x square plus 4x plus 5. Now what should be kept over here, quotient, so that your this answer becomes x4. क्या चीज मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर में, तो हम x स्क्वायर से करते हैं, तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x4, फिर इसी से अब सभी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम माइनस x क्यूब, सो हियर माइनस x क्यूब, देन plus minus plus into plus, it will be plus x square, now minus it will be plus and this is plus, so it will be minus. Now this first term will be cancelled. अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस 0x और x क्यूब सेम आएगा,
एक्स क्यूब आएगा, ये माइनस है और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो हम यहां लिखेंगे एक्स क्यूब और ये माइनस हो जाएगा 4x², फिर प्लस 4x हम ले लेंगे। अगेन वी हैव टू गेट एक्स क्यूब, तो x² है ऑलरेडी, तो प्लस हम x का यूज करेंगे, सो इट विल बी बिकम एक्स क्यूब माइनस x², so here it will be x into x, it will be x², then plus 1 into x 1 x, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे हम, सो दिस विल बी कैंसल्ड। नाउ ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो हो जाएगा हमारा ये 3 माइनस हो जाएगा 3x, और यहां ये बचेगा माइनस और प्लस माइनस, तो ये यहां हो जाएगा 3x। अब हमारा बचा एक टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म, दैट इज प्लस 5। ओके, अब हमें 3x² लाना है, तो यहां पर हमारा स्क्वायर है, तो 3x² प्लस 3x प्लस 5 है। हमें 3x² माइनस 3x² लाना है, तो हम करेंगे क्या, माइनस पहले रखेंगे ताकि यहां प्लस है और माइनस है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाए, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस 3, सो इट विल बी 3x², सो इट विल बी 3x², देन it will be minus minus plus, it will be plus, now 3 into x, it will be 3 into x 3x, then minus plus minus, so minus it will be 3, so here it is, we have got here minus, so we will write here minus, so minus हो जाएगा और यहां पर ये माइनस होगा साइन और यहां पर ये प्लस होगा। अब जो जो सेम है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस कैन बी कैंसल्ड, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो इट इज कैंसल्ड, नाउ इट इज 5 एंड दिस इज प्लस 3, सो इट विल बी 8। ओके, सो हियर इट इज नाउ क्लियर। कोसेंट हमारा जो है वो लिख सकते हैं, कोसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस x, कोसेंट जो होगा वो x² प्लस x माइनस 3, रिमाइंडर जो होगा 8 होगा। सो दिस इज सिंपली ए डिवीजन, सो इट इज एक्चुअली नॉर्मल काइंड ऑफ डिवीजन, लेकिन हमें इसमें पॉलिनोमियल्स दिया है px में और gx में, डिवाइजर में हमें बाइनोमियल या ट्राइनोमियल दिया जा सकता है, इसलिए हम इसके अनुसार से ऐसे हम इस प्रोसेस से हम डिवीजन करेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि फैक्टर है या नहीं है, वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। तो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको हमें फर्स्ट से डिवाइड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मोर on this. Actually third question is given over here, so it is having third option given, so let's solve that. Px is equal to given, Px is equal to x4 minus 5x plus 6 and gx is equal to given 2 minus x square. okay, अब इसमें भी हम देखते हैं कि पहले px जो है उसको सही से लिख लेते हैं। px में जैसे मैंने बताया कि पहले x का पावर यहां 4 है, तो इसके बाद x का पावर क्यूब स्क्वायर ऐसे डिसेंडिंग में होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो
तो हम इसको अरेंज पहले कर लेंगे, x का पावर 4 माइनस प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे अब जो दिया है माइनस 5x। हमने ये लिखा इसलिए बिकॉज ये टर्म्स नहीं है तो हम 0 लगा के लिख सकते हैं, प्लस 6 है। उसी तरह से हम gx जो है लिख सकते हैं, gx में उल्टा लिखा हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू राइट माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, तो इससे हमें डिवाइड करना है। नाउ अब डिवाइड करेंगे दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, डिवाइड हमें करना है ये वाले टर्म को, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हमारा आंसर क्या होगा। अब डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमें कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू गेट हियर प्लस, यानी यहां हमें प्लस में लाना है, यहां माइनस में है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे माइनस पहले रख देंगे ताकि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ में कर देंगे। सो इट विल बी x4 माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की जगह पर हमें लिख देना है, राइट। एक्स स्क्वायर क्या है, यहां पर ये 0x क्यूब है, हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहां पर हम मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और हमें ए स्क्वायर की जगह पर लिखना है 2x स्क्वायर। अब इसको हम पहले कैंसिल करेंगे, ये माइनस है, इसकी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस ये बिल्कुल जीरो दोनों टर्म है, ये हो जाएगा यहां भी प्लस, तो ये पहला कैंसिल हो गया। अब सेकेंड टर्म्स हमारा जो बचा वो क्या बचेगा, ये बचा एक्स स्क्वायर, तो यहां पर प्लस के साथ में लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो हमें 2x स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे, यहां पर माइनस है, हमें स्क्वायर लाना है, तो हम 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 2, सो यहां पर हम लिखेंगे -2, तो -2 और इंटू एक्स तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, फिर 2 2 4 माइनस, यहां पर 0x लिखेंगे और यहां जो ये जो 6 है, हम 6 पहले 6, तो 2 2 4 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस। यहां हमें टर्म चेंज करने की साइन जरूरत नहीं है बिकॉज ये 0x है और यहां पर हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसल हो गया टर्म, बचा अब कौन सा -5x और ये बचा हमारा +9। अब हम देखते हैं कि यहां 5x है और यहां x स्क्वायर है, सो पॉसिबिलिटीज नहीं है अब डिवाइड करने के, तो हम क्या करेंगे, इतना ही हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेंट और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो हम कोसेंट लिखते हैं, कोसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, कोसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा -x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर हमारा होगा, रिमाइंडर हो जाएगा ये -5x + 9। Okay, so in the next lecture we will do question number 2. Till then, stay home. Thank you.